So chapter 3 is inner product spaces. Before starting on to chapter, okay, you remember dot product function that we had done previously, right? So what is dot product? If A is, let us just say, if A is this A1, A2 and A3, and B is B1, B2, B3, then what is dot product AB? Then A dot B is written as A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, if these are all real numbers, right? Size. Yeah. So what was this? Dot product was this multiplication of individual corresponding elements, right? So if A was A1 A2 A3, B was B1 B2 B3, then A dot B was A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, right? And यहाँ पे अगर इसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, अगर B1 B2 B3 and A1 A2 A3 कॉम्प्लेक्स थे, so this one was B1 conjugate, B2 conjugate, and then B3 conjugate, right? So this was what we have seen in previous classes or in sections in your graduation also. So this was what you have studied till now, dot product, right? So now we'll be proceeding on with the inner product. Inner product is nothing but functions like A dot B, but it has some variable properties, then dot product. So therefore we call this inner product, right? जैसे ऑपरेटर्स क्या थे, मैपिंग्स थे, ठीक है, जिसको एक नॉर्म स्पेस से नॉर्म स्पेस के ऊपर लिख रहे थे, ऐसे ही इनर प्रोडक्ट जो है एक नॉर्म स्पेस के ऊपर डिफाइन होता है. सो नॉर्म स्पेस से नॉर्म स्पेस जो डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे जिस डेफिनेशन से, दैट व्हाट वी कॉल इज इनर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के पास एज सच कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, बट इनर प्रोडक्ट के पास प्रॉपर्टी होती है. एंड जैसे नॉर्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है, राइट? नॉर्म के पास चारों प्रॉपर्टीज होती है जो उसको सेटिस्फाई करवानी होती है, N1 N2 N3 एंड N4, राइट? सिमिलरली इनर प्रोडक्ट के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद की डेफिनेशन है क्या इनर प्रोडक्ट की. सो लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के, राइट? अ फंक्शन, इनर प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ब्रेसेस से, राइट? सो इनर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दिस, इफ इनर प्रोडक्ट हम ए ऑफ ए डॉट बी, ए और बी का इनर प्रोडक्ट देख रहे हैं, सो दैट वुड बी लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंडर बीच में a कॉमा b, राइट? सो दिस इज हाउ वी राइट एज इनर प्रोडक्ट. सो द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स. अब यहाँ पे टू एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते थे, इसीलिए वी हैव टेकन हियर डॉट, राइट? प्लीज कॉल ढंग से बोलो. I'm sorry, I can't hear you. Either you raise your volume if you have doubt or something. Ma'am, I am saying, may you please record this lecture? I am recording the lecture. Okay, okay. So a function is said to be an inner product on x if it satisfies. So inner product क्या है? एक function है from Cartesian product x cross x, right? x कौन सा space था? एक vector space था over field K, and इसकी जो कोडोमेन जा रही है, that is the field K. So that means inner product जो value देगा, just like norm, that would be a scalar value, right? So inner product को हम इस function को इनर प्रोडक्ट कब बोलेंगे? जब ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, राइट? सो उसमें n1 लिखा था, इसमें i1 i2 लिख सकते हैं हम इनको. सो द फर्स्ट कंडीशन इज इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x. if it is equals to 0, that is only if x is equals to 0, right? So that means कि इनर प्रोडक्ट जो वैल्यू 0 रिटर्न करेगा, दैट वुड बी ओनली इफ द एलिमेंट इज 0, एंड फॉर अदर वैल्यूज इट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. Second is inner product of x comma y
that would be equals to inner product of y comma x conjugate. conjugate की लाइन दिख रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं conjugate symmetry. अगर यहाँ पे x and y किसी भी x नॉर्म स्पेस में ना होके रियल स्पेस में होते तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते थे, राइट. कॉन्जुगेट की जगह सिर्फ सिमेट्रिक हो जाता क्योंकि रियल में कॉन्जुगेट इज द नंबर इटसेल्फ. So inner product of x comma y is equals to y comma x का conjugate. So this is called conjugate symmetry. Next third property is scalar multiplication. Alpha x comma y का inner product हम लेते हैं, so that would be equals to alpha of x comma y, right? Where this alpha belongs to the field and x and y belongs to x. And next property is addition, that x plus y का अगर इनर प्रोडक्ट देख रहे हैं हम पूरे z के साथ, so that would be x का with this z inner product and inner product of y comma z. Is it clear, this definition of inner product? Yes, ma'am. Okay. So this scalar what we will get, x dot y का inner product, इस scalar को बोलते हैं हम inner product of x comma y, right? Next what we have is जो वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट. अगर एक वेक्टर स्पेस के पास इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, या फिर फ्री हिल्बर्ट स्पेस. राइट नाउ विल बी प्रोसीडिंग टू व्हाट इज एन हिल्बर्ट स्पेस. तो उसके लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस वाज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस? एक वेक्टर स्पेस जिसके पास एक इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, right? So that would be an inner product space or free Hilbert space. Now there are few properties of inner product, right? जैसे हमने ऊपर देखा था, if this was alpha of x, so alpha बाहर आ जाता, and beta y है, so beta बाहर आ जाएगा, right? Addition के ऊपर distribute हो जाएगा, then scalar बाहर आ जाएगा. So alpha x plus beta y with z आएगा, so that would be nothing but, पहले हम क्या करेंगे, x और z को समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट. तो पहले हमने समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन उसके बाद व्हाट वी हैड स्केलर, तो स्केलर बाद में बाहर आया. सो दिस वाज अल्फा ऑफ इनर प्रोडक्ट xz प्लस बीटा yz, राइट. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. So next was Yes, ma'am. now see in the property 3, the scalar multiplication, we had considered only the scalar multiplication on the first element alpha x, only on element x, right? Only on the first element. So if the scalar multiplication is on element second, right? So if there is inner product of x comma alpha y, so alpha bahar aayega but with alpha conjugate, right? So inner product of x comma alpha y would be alpha conjugate inner product of x comma y. ठीक है. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा अल्फा y है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ, मैं कॉन्जुगेट की जगह ये लिख रही हूँ, दिस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा y कॉमा x, राइट. बाय प्रॉपर्टी 3 लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी 2 सिमेट्रिक वाली कॉन्जुगेट सिमेट्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब ये इनर प्रोडक्ट ऑफ conjugate of alpha y, so conjugate को अगर हम as it is रहने देते हैं, so this would be a times alpha times conjugate inner product of y comma x. This is clear from scalar multiplication वाला, and this would be nothing but conjugate of this whole term, that would be a का conjugate and y comma x का conjugate, right? So this second property is clear, and y comma x a conjugate is nothing but, this is a conjugate as it is, and this is nothing but inner product of x comma y. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just go through it once. So हाँ, so inner product space के ऊपर अगर हम एक norm define कर देते हैं, right? And this norm is norm of x. इसको define कैसे किया है? That is the square root of inner product x comma x, right? And then एक metric define करते हैं,
dxy, राइट। एंड d ऑफ xy को कैसे डिनोट कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, इस वाली डेफिनेशन से, जो ऊपर डेफिनेशन हमने यूज की है नॉर्म ऑफ x की, दैट वुड बी इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कॉमा x माइनस वाई का स्क्वायर रूट, राइट। तो अगर हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है लेते हैं, तो उसके ऊपर, हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हम एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी नॉर्म, कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, एंड उस नॉर्म को डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x का अंडर रूट, राइट। एंड एक मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं सिमिलर केस में, dxy इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। अब यहाँ पे बात आती है, क्या ये नॉर्म सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। कैसे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इनर प्रोडक्ट की क्या होना चाहिए, नॉर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, सो इसका अंडर रूट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इट वुड बी 0 ओनली इफ x is equals to 0, right। तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो क्लियरली सेटिस्फाई हो गई। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा, नॉर्म ऑफ, अगर हम अल्फा x ढूंढ रहे हैं, so that would be nothing but, अब x की जगह हमने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया है, राइट। so norm of alpha x would be square root of inner product alpha x comma alpha x, clear। and so this would be nothing but, alpha दोनों से बाहर आएगा, so this would be square root of a into a conjugate inner product of x comma x, is it clear, right। and a conjugate जो है मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर, so this is modulus of a square, and then Yes, उसका ma'am. स्क्वायर रूट, so modulus of a आ जाएगा only, so this would be modulus of a into inner product of x comma x, right। so norm वाली प्रॉपर्टी ये भी satisfy हो गई, because that would be equals to nothing but modulus of a into norm of x, clear। मैम स्क्वायर रूट हाँ, एक्स कॉमा एक्स में स्क्वायर रूट है। हाँ स्क्वायर रूट एक कंप्लीट का है ना, हाँ सॉरी, हाँ तो कंप्लीट का स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ठीक है। इज इट क्लियर और एनी डाउट इन दिस, No, ma'am. चलो नेक्स्ट। सो फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, सो दैट इज लेफ्ट हैंड असाइनमेंट, कि ये प्रूव करना है कि ये नॉर्म है एंड ये मैट्रिक है, राइट। दिस इज वेरी इजी टू प्रूव, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को प्रूव करने में। सो अब एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हमने क्या बोला, कि हम हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, सो दैट वुड इम्प्लाई हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस एक नॉर्म स्पेस होगा, राइट। सो दिस इज गिवन, जब हम इसको प्रूव कर देंगे कि एक नॉर्म डिफाइन कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। मैम हाँ मैम आपने आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी लेफ्ट किया है, तो हाउ टू शो कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मतलब यदि हम मतलब मतलब x टू z ले, x टू y और y टू z ले, तो मतलब एडिशन कैसे हम दिखाएंगे कि ग्रेटर देन चलो होगा। करते हैं उसको फिर। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई अगर हम ले रहे हैं, राइट, सो दिस वुड बी नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ, अब मैं इसमें स्क्वायर रूट की जगह s, चलो ठीक है, x प्लस वाई कॉमा x प्लस वाई, राइट। तो इसमें दोनों तरफ दैट वुड बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई को, अगर फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये x कॉमा x प्लस x कॉमा y, दिस इज x प्लस y कॉमा दिस। ये वाला स्टेप क्लियर है। सेकंड जो एडिशन है हमने सेकंड एलिमेंट पे x प्लस वाई पे,
उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले इन उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की Yes. प्रॉपर्टी। Yes, ma'am. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, अब फर्स्ट को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं सो दैट वुड बी x कॉमा x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y, सॉरी y कॉमा x, राइट। ये फर्स्ट को जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को ब्रेक डाउन किया ये बनेगा, जब सेकेंड एलिमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे दैट वुड बी x कॉमा y प्लस y कॉमा y, राइट। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब हम यहां से हम बोल सकते थे दिस इज नथिंग बट x कॉमा x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमा x, ये पूरे का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी दैट स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम अंडर रूट a प्लस बी यूज कर रहे हैं so that would be less than equals to square root of a plus square root of b। ये प्रॉपर्टी आई डोंट नो तुमने प्रूव की हुई है या नहीं की हुई, बट इट इज अ गिवन फैक्ट। सो यहाँ से उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। सो इट वाज स्क्वायर रूट, या चलो इसको आगे प्रूव करूं मैं। No, no, ma'am. ठीक है, okay. So next is a complete inner product space, a complete inner product space। अब हम complete किस मीनिंग में बोल रहे हैं, कंप्लीट इन द मेट्रिक डिफाइन, राइट। तो जो हमने मेट्रिक डिफाइन की थी अगर उसके रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट आ रहा है तो देन उसको हम बोलेंगे हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस फंक्शनल में इस लेवल पे भी एंड आगे रिसर्च लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यू हैव टू गेट क्लियर ऑन कि हिल्बर्ट स्पेस है क्या। सो हिल्बर्ट स्पेसेस आर हिल्बर्ट स्पेस क्या होगा, ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट किस सेंस में है, जो हमने मेट्रिक डिफाइन की थी उस सेंस में, दैट इज d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, राइट। इस सेंस में अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट आ रहा है सो दैट मींस दैट इज एन हिल्बर्ट स्पेस। एंड कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अब हम नॉर्म हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ऑल हिल्बर्ट स्पेसेस आर बनाक स्पेसेस। इज दिस क्लियर? मैम कंप्लीट है इसीलिए तो हम लोग कह पा रहे हैं ना बना किस पे होगा, क्योंकि कंप्लीट ही तो बेसिकली बना हाँ होता है। कंप्लीट है तभी तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रही हूँ मैं। कंप्लीटनेस नहीं होगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे ना। चलो ना, हमने पीछे देखा कि इनर प्रोडक्ट जो है लीनियर है इन फर्स्ट फैक्टर एंड कॉन्जुगेट लीनियर इन द सेकंड फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि ax कॉमा y लिख रहे हैं तो उसको तो हम लिख सकते हैं इजीली a ऑफ x कॉमा y, बट जैसे ही यहाँ पे b आ जाता है फैक्टर तो उसको हमें लिखना पड़ेगा a इंटू b का कॉन्जुगेट, राइट। So that means this is linear in first factor and conjugate linear in the second factor. So we can say that inner product space is sesquilinear और सेमीलिनियर इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर में तो कंप्लीटली लीनियर है एंड सेकंड फैक्टर में हाफ लीनियर है, राइट। मतलब एडिशन होल्ड करेगी लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्जुगेट फैक्टर आ जाएगा। तो सेकंड में लीनियर नहीं होगा, कॉन्जुगेट लीनियर होगा, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनर प्रोडक्ट इज सेस्क्यूलिनियर और कॉन्जुगेट लीनियर, ठीक है। सेमी लीनियर भी बोल सकते हैं इसको। सो नाउ एन एग्जांपल्स कि किस स्पेस पे कैसे डिफाइन हो रही है। सो अगर हमारे पास स्पेस है Rn में एलिमेंट्स कैसे होंगे, n टपल्स होंगे। तो अगर दो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम x एंड y, तो वो n टपल्स हैं, zeta1 to zeta n एंड eta1 to eta n, राइट। तो हमने एलिमेंट्स लिए x Rn के। सो उनका इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यही फंक्शन होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, right? So inner product of x comma y is nothing but
dot product of x comma y and which is zeta 1 eta 1 plus zeta n eta n, right? So ये अगर Rn हमारे पास स्पेस है तो उसमें इनर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट विद द प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट की सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन डिफाइन किस तरीके से होगा? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, ठीक है? सो नॉर्म ऑफ एक्स इसमें क्या होता है? नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा एक्स, और एक्स कॉमा एक्स अगर का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे सो दैट वुड बी नथिंग बट zeta 1 स्क्वायर प्लस zeta 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन zeta n स्क्वायर, सो उसका अंडर रूट, राइट? तो नॉर्म भी डिफाइन हो गया। एंड मेट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं? सो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड एक्स माइनस वाई का जब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे सो दैट वुड कम आउट टू बी दिस summation zeta j is equals to 1 to n zeta j minus eta j. Is it clear? जो हमने मेट्रिक डिफाइन की है एंड नॉर्म डिफाइन किया है, तो यूक्लिडियन स्पेस के ऊपर डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है और इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट, so that implies that Rn with this inner product space is an inner product space, right? क्यों? ये हम असाइनमेंट में प्रूव करेंगे। चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है कि अगर हम नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट x माइनस वाई को इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। रियल में ऑब्वियसली करेगा, ठीक है? देन इज कंप्लीट आल्सो, Rn इज कंप्लीट आल्सो। हम R को प्रूव कर चुके हैं क्योंकि कंप्लीटनेस हमें किस उसमें चाहिए है? मेट्रिक किस सेंस में? एंड ये जो है d of x comma y is equals to square root of this, ये एक मेट्रिक जो डिफाइन करते हैं इससे यूक्लिडियन मैट्रिक्स है नॉर्मल, तो उस केस में Rn कंप्लीट होता है एंड हेंस इट इज एन हिल्बर्ट स्पेस। इसको हम बोलते हैं रियल हिल्बर्ट स्पेस क्योंकि इसमें फील्ड क्या है? R, Rn ओवर R देख रहे हैं, ठीक है? तो Rn का एग्जाम्पल क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट, अगर Rn में अगर n को 3 ले लेंगे, n is equals to 3, that is R3 space, then it would give us standard inner product space than usual dot product, right? जो हमने ऊपर बात की थी कि this is nothing but usual dot product अगर n is equals to 3 है, या 2 भी होगा तब भी डॉट प्रोडक्ट की फंक्शन आएगा। 3 से ज्यादा के ऊपर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूसेज आता है कि हमने डॉट प्रोडक्ट जब हमारे पास थी तो हमने इनर प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया? क्योंकि इनर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर रहे थे Rn के ऊपर विद जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें नॉर्म भी आ गए, डिफाइन हो गया एंड सब कुछ, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हम डिफाइन नहीं कर रहे थे कुछ भी, राइट? दैट वाज जस्ट अ फंक्शन। नेक्स्ट इज यूनिटरी स्पेस Cn, राइट? हाँ, मैम आपने बताया कि n बराबर अप टू 3 तक हम डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन कर लेते हैं। इफ वी टेक n इज इक्वल टू 4 देन फिर कैसे करा जाता होगा? मतलब क्या चीज रहता है फिर n is equals to जब हम 4 डॉट है यूज तो नहीं भी करते हैं? इनर प्रोडक्ट तो इसी तरीके से डिफाइंड होगा। ये तो हर एक n is equal हर एक n के लिए है, चाहे n यहाँ पे 10 है या कुछ भी है तब, लेकिन उसको हम तब डॉट प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट यूजुअली होता है कुछ, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैंडर्ड जो डॉट प्रोडक्ट है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि n is equals to 4 के लिए डॉट प्रोडक्ट होल्ड नहीं करेगी, वो भी सबके लिए करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। बट जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि n is equals to 3 जब होता है तो हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है x y z, उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन होती है। R3 हमने यहाँ पे स्पेशली इसीलिए लिखा है बिकॉज R3 का यूसेज जनरल लाइफ में 3D लाइफ में बहुत वास्ट है, ठीक है? तो इसीलिए हमने लिखा है कि जब R3 स्पेस कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट यूजुअल डॉट प्रोडक्ट जो हम डिफाइन करते हैं वो यही इनर प्रोडक्ट है। सिर्फ ये बोला है ताकि अगर हमारे पास ये सिस्टम आए कि हमें 3D में कुछ निकालना है एंड वी वांट टू फाइंड कि डॉट प्रोडक्ट क्या है या इसका इनर प्रोडक्ट क्या है, तो हम इन फैक्ट को यूज कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑन R3। Sorry. So next is the unitary space. This is a complex Hilbert space. We are already stating this. That means matrix के matrix D के corresponding ये complete होगा
एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस ये ऑलरेडी डिफाइन करेगा. एंड इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज x का zeta1 to zeta n एंड देन सेकंड एलिमेंट इज कॉन्जुगेट एलिमेंट, राइट? तो नॉर्मल जो हमने डिफाइन किया है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y इज नथिंग बट zeta1 eta1 कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, इस इनर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जब हम नॉर्म डिफाइन करेंगे, सो नॉर्म ऑफ x वुड बी नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x का स्क्वायर रूट एंड x, x का जब इनर प्रोडक्ट ले लेंगे दैट वाज zeta1 into zeta1 conjugate and z into z bar कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? mod z square. so this is nothing but norm of x को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन mod of zeta I square, right? now एंड मेट्रिक को कैसे डिफाइन किया है? d of x y दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस y एंड नॉर्म ऑफ x माइनस y क्या आएगा? ये निकाल के आ रहा है. ठीक है, ऑल्सो हम चैप्टर आई गेस 2 था स्टार्टिंग में, उसको हम प्रूव कर चुके हैं कि cn कंप्लीट होता है, राइट, विद दिस मेट्रिक. सो वी हैव दिस दैट दिस इज cn इज अ कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस, राइट? कंप्लीटनेस हम प्रूव नहीं कर रहे हैं किसी भी केस में, बिकॉज हम ऑलरेडी चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में आई गेस, या फिर नॉर्म स्पेस जब हमने डिफाइन किया था तब हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं. आई गेस मैम ने करवाए होंगे एग्जांपल्स ये. Yes, ma'am. So next is Hilbert sequence space L2. L2 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है अगर हम कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि एक सिर्फ यही स्पेस था whose mic is this? Do you want to say something or some please, otherwise mute yourself. So next is the Hilbert sequence space L2. L2 is a very important space with respect to inner product spaces, क्योंकि सिर्फ एक यही स्पेस है L2 जिसमें जो कि इनर प्रोडक्ट होगा. बाकी का LP कोई भी स्पेस होगा that would not be a Hilbert IPS, that would not be an Hilbert space. When P is not equals to 2. जब P इक्वल टू 2 नहीं होगा तब कोई भी इसमें से हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, तो सिर्फ एक L2 करेगा. ठीक है, L2 के ऊपर इनर प्रोडक्ट वही डिफाइंड है, नॉर्मल वाली जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, दैट इज समेशन zeta1 to infinity zeta j eta j का कॉन्जुगेट, राइट? एंड नॉर्म ऑफ x इज नथिंग बट समेशन दिस अंडर रूट ऑफ समेशन zeta I square and d is same. L2 is complete also, we have proved. So L2 is an Hilbert space corresponding to this matrix dxy, right? Would be, sorry, would not be. मैम हिल्बर्ट स्पेस तो मैम कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना? हाँ, तो मैम कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस कहने का मतलब क्या मैम? उसमें भी कॉची सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ेगा जो कंप्लीट होगा, हाँ, जो कन्वर्ज हाँ, करेगा. ओके मैम. ठीक है. मैम हाँ, इसका रीजन बता दीजिए, ये P इज इक्वल टू 2 पे ही होता है, अदर पे क्यों नहीं होता है? प्रूव करेंगे आगे. ओके. नेक्स्ट इज स्पेस L2 फ्रॉम A to B. ये क्या डिफाइन करेगा? इसके ऊपर अगर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं L2 स्पेस में, सो दैट वुड बी इंटीग्रेशन का स्पेस होता है ये, राइट? सो A to B xt into yt कॉन्जुगेट, राइट? इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड हुई है. एंड नॉर्म ऑफ xt इज नथिंग बट, यहाँ पे x की जगह y की जगह x लिखेंगे तो xt into x2 कॉन्जुगेट, दैट वुड बी नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ xt का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस स्पेस L2 defined with this metric norm of x comma y, this is also a complete space, क्योंकि इसकी जो elements आएंगे that would be equivalence classes. कौन सी classes की? where x is equivalent to y if this integral is 0, right? ये इससे आएगा dxy का, जब हम ये निकालेंगे norm of x minus y
नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इस केस में क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ x का एलिमेंट माइनस वाई, सो x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा ये x, ठीक है। सो ये जो dxy आएगा ये इसी तरीके से डिफाइंड होगा, dxy इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। एंड dxy को मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाने से जब क्या होएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो एंड x एंड y यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, x एंड y यहाँ पे फंक्शंस हैं, राइट। सो देयरफॉर ये 0 कब होगा, जब हम ये बोल रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट क्लासेस होगी, दैट इज देयर लीबेग इंटीग्रल इज 0। लीबेग इंटीग्रल क्या होता है, यही होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, राइट। ये क्लियर है, मैंने यहाँ पे बोला कि इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो दैट वुड बी इक्विवेलेंस क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे जब हम मैट्रिक डिफाइन करेंगे, सो मैट्रिक कब डिफाइन होगी, यहाँ पे मैट्रिक डिफाइन होगी यहाँ पे फ्रॉम इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b एंड अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर, ये आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दिस वुड बी नथिंग बट इंटीग्रेशन a टू b मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर, राइट। एंड मैट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए, इसको मैट्रिक होने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, जस्ट कि ये 0 भी होता है, मैट्रिक का एलिमेंट 0 कब होता है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y वाला, ठीक है। एंड x इज इक्वल्स टू y मतलब सेम फंक्शंस होने से है, सेम फंक्शंस होने का मतलब क्या है, x वुड बी इक्विवेलेंट टू y, मतलब फंक्शंस इक्विवेलेंट होने चाहिए। एक ही इक्विवेलेंस क्लास में अगर होंगे दो फंक्शंस तो उनका लीबेग इंटीग्रल 0 आ जाएगा। दिस लीबेग इंटीग्रल इज नथिंग बट दिस, राइट। सो देयरफॉर दिस स्पेस इज कंप्लीट and L2 is an Hilbert space. Any doubt in this? So next lemma कि if मैम ये जीरो कैसे आया, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। मैट्रिक की में प्रॉपर्टी होती है d ऑफ एक्स वाई, अगर हम निकाल रहे हैं मैट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, d ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल्स टू y वाली फैक्टर होता है, यही होता है x इज इक्वल टू y, हाँ यस यस। अब इसमें dxy को हमने डिफाइन कैसे किया है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, एंड नॉर्म ऑफ x माइनस वाई आया क्या है, नथिंग बट दिस, ये जो हमने इंटीग्रेशन वाली टर्म लिखी थी यही वाला आया है, नॉर्म ऑफ दिस। ये क्लियर है कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ये फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन a यस टू b, मैम। राइट। तो जब हम dxy की प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो dxy इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या होगा, दिस इंटीग्रेशन a टू b मॉड्यूलस ऑफ दिस वुड बी 0, ये पूरा फैक्टर 0 होना चाहिए, dxy 0 होने का मतलब, राइट। so that would यस mean मैम। x minus y का स्क्वायर should be 0 एंड बाहर इंटीग्रेशन साइन भी है, राइट। that means यस मैम। ये 0 कब कब हो सकता है, जब इनका लीबेग इंटीग्रल जो है इस फैक्टर का, अंदर वाले फैक्टर का लीबेग इंटीग्रल, ये जो कि जिसको कि पूरा कहते हैं, जब ये 0 कब होगा, Yes, जब x एंड y जो है इक्विवेलेंट फंक्शंस होंगे, नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट फंक्शंस, जैसे ओके ठीक है। मैम। सो दैट वुड इम्प्लाई कि ये मैट्रिक कब होगी, सिर्फ अब इस केस में जब ये इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट था कि इक्विवेलेंट क्लासेस होने चाहिए x एंड y फंक्शंस, अगर हम स्पेस ले रहे हैं ये L2AB, राइट। तो अगर ये इक्विवेलेंट फंक्शन है तभी उस केस में ये हिल्बर्ट स्पेस बनेगा, अगर इक्विवेलेंट फंक्शंस नहीं है तो नहीं बनेगा। ओके ओके मैम, ठीक। थैंक यू। So next is the lemma. Lemma says that if this is a norm defined induced by the inner product space, right? So हमने एक नॉर्म लिया है जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, इस इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस हुआ, then this satisfies the parallelogram inequality. Parallelogram equality क्या कहती है, norm of x plus y square is plus norm of x minus y square is equals to 2 times this.
पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी वेक्टर स्पेसेस में भी की है कि इफ अगर एक वेक्टर ये x जा रहा है इस साइड एंड एक वेक्टर y जा रहा है दिस, तो x प्लस y क्या होगा, इनका ये रिजल्टेंट वेक्टर, एंड x माइनस y वुड बी दिस वेक्टर, राइट. सो दिस सेज दैट x प्लस y का नॉर्म स्क्वायर प्लस x माइनस y का स्क्वायर, इसका नॉर्म ये लेंथ, एंड नॉर्म क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा इनका डिस्टेंस. अगर यहाँ पे ये जीरो स्पेस है, अगर यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं, so this length would be x, this length would be y, and this would be x plus y vector की length, right? So norm of x plus y square plus norm of x minus y square is equals to this. कि norm जो है अगर हम इनर प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. इसको प्रूव करने के लिए इसका जो प्रूफ है दैट इज क्वाइट लेंथी, बट इन शॉर्ट टर्म्स में देख लेते हैं. नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई प्लस x कॉमा वाई, एंड इसको जब हम सेपरेट करेंगे वी वुड हैव नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट x कॉमा y एंड इनर प्रोडक्ट y कॉमा x, राइट. सिमिलरली जब हम y की जगह पे माइनस y रखेंगे, नॉर्म ऑफ x माइनस y भी चाहिए ना हमें, एंड x माइनस y का नॉर्म हमें पता नहीं, हम इसको x दैट इज y को जस्ट माइनस y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो नॉर्म ऑफ x माइनस y आ जाएगा. That would be nothing but norm of x square plus norm of y square, and यहाँ पे ये माइनस टर्म्स आ रही है, राइट. अब हमें क्या चाहिए, इसका एडिशन, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स जो लास्ट वाली इनर प्रोडक्ट वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2 times norm of x square plus norm of y square, राइट. पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो गई. 2 लाइन प्रूफ. नेक्स्ट, if a norm does not satisfy the parallelogram inequality, then it cannot be obtained from an inner product. Such इसका मतलब ये है कि जो भी इनर प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं कि जो भी नॉर्म एक इनर प्रोडक्ट स्पेस से इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस हुआ है उसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके प्रूफ में भी देखो हमने इनर प्रोडक्ट के अलावा तो कोई इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, राइट. सो अगर वो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करता है वो नॉर्म, तो हम ये नहीं कह सकते, तो वो किसी भी इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस नहीं हो सकता. एंड जरूरी नहीं है कि हर एक नॉर्म जो है एक इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस हुआ हो, ठीक है. सो दिस नोट सेज that if a norm does not satisfy the parallelogram inequality, then it cannot be obtained from an inner product, and such norms do exist, right. So that means इसका conclusion क्या हुआ कि सारे नॉर्म स्पेसेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो है वो नॉर्म स्पेसेस होते हैं, राइट. कन्वर्स इज ट्रू, बट नॉट ऑल नॉर्म स्पेसेस आर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. इज दिस क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब वो कौन से स्पेसेस होते हैं उनको देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म स्पेसेस व्हिच आर नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, राइट. सो वो एग्जांपल्स देखते हैं. So the space LP with P not equals to 2 is not an inner product space and hence not a Hilbert space, right. So जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, L2 तो एक Hilbert space था, complete inner product space, but LP with P not equals to 2 एक inner product space ही नहीं होगा, तो Hilbert space की बात ही नहीं करेंगे हम, राइट. तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, we will prove that कि norm of LP जो है उसको हम किसी भी इनर प्रोडक्ट से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, राइट. तो इससे क्या आएगा कि इनर प्रोडक्ट से हम कोई भी ये जो नॉर्म आ रहा है ये किसी भी इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस नहीं हो रहा, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट उसके ऊपर डिफाइन नहीं हो रही, दैट मीन्स वो स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, राइट. तो उसके लिए व्हाट विल डू इज विल टेक 2 एलिमेंट्स x एंड y. x को हमने लिया फर्स्ट पोजीशन 1, सेकंड पोजीशन 1 एंड बाकी सारे 0, एंड y को हमने लिया फर्स्ट पोजीशन 1, सेकंड पोजीशन -1 एंड बाकी सारे 0. देन ये LP में बिलोंग कर रहे हैं, राइट. तो नॉर्म ऑफ xp क्या आएगा, नॉर्म ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू दिस p, दैट वुड बी नथिंग बट समेशन zeta I p to the power 1 by p. यही होता है LP नॉर्म, राइट. तो दैट वुड बी इक्वल्स टू, अब जब इसको क्लियर नहीं होगा लिखना तो उसके लिए देखो इसको एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ zeta 1 to the power p plus zeta 2 to the power p plus so on. zeta 1 क्या है 1, zeta 2 क्या है 1, बाकी सारे 0. So this would be 1 plus 1 2 raised to the power 1 by p,
right? So modulus of x is equals to 2 raised to the power 1 by p. Similarly modulus of y जो है वो भी 2 raised to the power 1 by p आ जाएगा, right? And norm of x plus y, अगर x plus y देख रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा, so that would be nothing. मैम ईटा 1 1 कैसे क्या ईटा 1 1 कैसे मैम जी? ईटा 1 1 नहीं है, हमने एग्जाम्पल लिया है। जब हमें किसी चीज की कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करनी होती है, प्रूव करना होता है कि दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो एक एग्जाम्पल इनफ होता है ना प्रूव करने के लिए। जब जनरलाइज प्रूव करना होता है तो हमें पूरा थ्योरेटिकल प्रूफ देना होता है, बट अगर हमें इसको डिस्प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल इनफ होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि अगर एक्स एंड वाई को हम ये दो एलिमेंट्स लेते हैं, बहुत इजी एलिमेंट्स है ये, ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत सर्च करना पड़ा इन एलिमेंट्स के लिए। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट से प्रूव हो जाएगा कि ये इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस नहीं हो रहा है नॉर्म, राइट? तो हमें काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं। मैम सो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई वुड बी 2 एंड 0 0 0, इसका नॉर्म ओवर p वुड बी नथिंग बट 2। सिमिलरली x माइनस वाई क्या होगा? 0 एंड 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट पे 2 आएगा एंड इसका नॉर्म विद रिस्पेक्ट टू p वुड आल्सो बी 2, राइट? तो जब हम इनका समेशन करेंगे तो दैट वुड बी नथिंग बट x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी देख रहे हैं हम, सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। सो दिस समेशन वुड बी इक्वल्स टू 8। बट इंडिविजुअल्स का जो समेशन देखते हैं पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी का RHS, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 times norm of xp. xp was 2 to the power 1 by p. So इसका square that would be 2 to the power 2 by p and 2 by p. So therefore this is nothing but 4 into 4 to the power 1 by p. But this is not equals to 8. So इस केस में L2 के इस एग्जाम्पल के केस में पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो जो नॉर्म है वो किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से इंड्यूस नहीं हो रहा है एंड देयरफोर दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। एंड अगर p इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, सिर्फ ये उस केस में इक्वल होगा, क्योंकि p अगर इक्वल टू 2 होगा तो 4 रेज़ टू पावर 1 बाय p क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट एंड 4 का स्क्वायर इज 2 एंड 2 into 4 is 3, ठीक है? So LP with P not equals to 2 is not an inner product space, but LP is complete, ठीक है? So hence LP with P not equals to 2 is a Banach space which is not an Hilbert space, right? So हमें एक एग्जाम्पल मिल गया एक स्पेस का कि एक Banach स्पेस है बट हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। हमने पीछे एक स्टेटमेंट लिखी थी कि ऑल हिल्बर्ट स्पेसेस आर Banach स्पेसेस, राइट? सो उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो हमने LP के केस में देख लिया। Is it okay? Is it clear or some doubt? No doubt, ma'am. So next example is CAB. Easiest example CAB. This is not an inner product space and hence not an Hilbert space. CAB के ऊपर norm कैसे define होता है? Supremum norm. So अगर x एक function है जो कि कंटिन्यूअस है ओवर ए बी, सो नॉर्म ऑफ एक्स इंफिनिटी इज नथिंग बट सुप्रीमम t belongs to j, norm or modulus of xt and j is from a to b, right? So इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं xt is equals to 1 and yt is equals to this t minus a upon b minus a, ये एक स्लोप की तरीके का फंक्शन आएगा, राइट? ये वाला जो फंक्शन है, जब हम स्लोप निकालते हैं एक लेंथ उसकी सॉरी स्लोप नहीं डिस्टेंस निकालते हैं, अगर इसमें t जो है b के इक्वल हो जाएगा तो दैट वुड बी 1, अगर a को इक्वल हो जाएगा तो 0। सो ये कॉम्प्लेक्स हम वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम a टू b, राइट? a टू b अगर हम एक लाइन डिफाइन करते हैं, इजीएस्ट फंक्शन ये भी हो सकता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इससे इजी लाइन हमें नहीं मिलेगी, राइट? सो हमने उसको डिफाइन कैसे किया है, t माइनस ए अपॉन b माइनस ए, सच दैट y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 आएगी एंड इस पॉइंट पे 1 आएगी, ठीक है? एक ये फंक्शन लिया है एंड दूसरा फंक्शन लिया है वन कांस्टेंट फंक्शन, राइट? सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ x वुड बी 1, कांस्टेंट फंक्शन का नॉर्म इज सेम, एंड नॉर्म ऑफ y वुड बी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ yt। अब yt का सुप्रीमम जो है दैट वुड बी ओनली व्हेन t इज इक्वल्स टू b and the supremum is 1,
राइट, एंड नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का नॉर्म क्या आएगा, दिस इज सुप्रीमम ऑफ दिस, सुप्रीमम ऑफ दिस क्या आ रहा है 1, सो पूरे का सुप्रीमम वुड बी 2, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आएगी दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 हर एक t के लिए, so therefore norm of x plus y is 2 and norm of x minus y अगर इंफिनिटी के केस में निकालेंगे, so this, इसकी मिनिमम वैल्यू अब देखनी पड़ेगी क्योंकि हम नेगेटिव देख रहे हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तब उस केस में 0 ये वैल्यू जो है 1 माइनस दिस ये मैक्सिमम हो जाएगी, so therefore इसका सुप्रीमम इज 1, तो इस केस में भी पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, right, so therefore this norm cannot be induced from an inner product and hence it is not an inner product space. Is it clear? मैम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनर प्रोडक्ट का कोई भी एग्जांपल हुआ तो हम इसे पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ही निकाल सकते हैं, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, मतलब हम सेटिस्फाई यहाँ पे कराने हम का यहाँ नहीं कराए या अगर फिर हमारे कराए पास एक only- नॉर्म डिफाइन है और हमें ये देखना है कि वो नॉर्म क्या किसी इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस हो रहा है, राइट, उस नॉर्म के करस्पॉन्डिंग क्या एक इनर प्रोडक्ट है, तब हम पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये कहीं दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किए कि क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा, तो उस केस में हमें उसकी इनर प्रोडक्ट की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। ओके मैम, ओके गॉट इट, ठीक है। Next is the definition, orthogonality. So an element x of an inner product space, inner product space लिया है हमने, so उसका एक एलिमेंट को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, to an element y if inner product of x comma y is 0, right, so an element x of an inner product space is said to be orthogonal to an element y if inner product of x comma y is equals to 0, ये लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, राइट, कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y अगर 0 हो जाता है तो एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल होते हैं, एंड उनको डिनोट कैसे किया जाता है, ऑर्थोगोनल को x पर y, ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है, अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो दैट मींस उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, सो उसी से ये सिंबल लिया गया है कि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस ऑर्थोगोनल है, राइट, सो x इज ऑर्थोगोनल टू y इफ इनर प्रोडक्ट इज 0, राइट, फॉर द सबसेट्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं a, b of x, then x is perpendicular to x is orthogonal to whole subject A, कब कहेंगे, जब उसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होगा, राइट, एंड दो सेट्स को अगर हम भी बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल है, दैट मींस उनका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। इज दिस नोट क्लियर? एक एलिमेंट दूसरे, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर दो स्पेसेस हैं ए एंड दो सबसेट्स लिए हैं हमने एक्स स्पेस के, तब हम क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट है ऑर्थोगोनल पूरे सेट के, इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट उस सबसेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है, दैट इज इफ x इज ऑर्थोगोनल फॉर ऑल a belongings to a, राइट, एंड अगर दो सबसेट्स को हम ऑर्थोगोनल बोल रहे हैं तो वो कब होगा, जब उनके हर एक एलिमेंट a is orthogonal to b for all a and for all b, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली ऑर्थोगोनल होंगे, तब दो स्पेसेस ऑर्थोगोनल होंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। so we'll finish this section now, we'll proceed with section 3.2 tomorrow. Any doubt in today's lecture you can ask? मैम मेरा एक डाउट था, मैं ये पूछना चाह रहा था ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नीड क्यों पड़ा, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में बताया था आई मिस्ड इट, सो कैन यू okay, प्लीज। so inner product spaces का नीड क्यों पड़ा? फर्स्ट थिंग इज, हम किसी भी स्पेस को जब पढ़ते हैं, जैसे हमने मेट्रिक स्पेसेस पढ़ा था, तो उसमें क्यों मेट्रिक की क्यों नीड पड़ी थी, बिकॉज मेट्रिक जो है वो डिस्टेंस डिनोट कर रहा था, राइट, जब हमने नॉर्म Yes, स्पेस ma'am. पढ़ा तो उसमें नॉर्म ऑफ x अगर निकाल रहे हैं या नॉर्म ऑफ x माइनस वाई अगर निकाल रहे हैं, सो दैट इम्प्लाइज वो x माइनस वाई के बीच का डिस्टेंस है, राइट, सो इसी तरीके से जब हम इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हम नॉर्म जैसे डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट किस स्पेस में हम डिफाइन करते थे, या तो R पे या C पे मैक्सिमम, ठीक है,
तो उस डॉट प्रोडक्ट को जब हमें एक्सटेंड करना हो किसी भी स्पेस के ऊपर, राइट, कोई भी वेक्टर स्पेस है, आर या सी नहीं, कोई भी हो सकता है, L2 LP जब हमने देखा है, तो जब उस डॉट प्रोडक्ट को हमें एक्सटेंड करना है तो हमें कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज चाहिएंगी, ठीक है। सो उस फर्दर प्रॉपर्टीज के जब हम डिनोट करते गए, उसको निकालते गए, तो अब हम इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे पहुंचे कि अगर एक ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर देते हैं तो वो किसी भी वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है, और अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम अगर इस स्पेस को आर स्पेस या सी स्पेस लेते हैं तब वो डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन हो जाएगा। एंड अगर वो कोई और स्पेस लेते हैं हम, तब उस केस में भी हम डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट की तरीके से कह के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। डॉट प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना था हमें। डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाती है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ना, जब हम वेक्टर में देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू, यस मैम। राइट। तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? रिजल्टेंट ऑफ टू एलिमेंट्स। वो रिजल्टेंट क्या डिनोट करेगा? दैट वुड बी, अगर ये A1 A2 A3 है, दैट मीन्स जीरो से डिस्टेंस देख रहे हैं ना हम इसमें, तो A डॉट B जो आएगा वो जीरो से डिस्टेंस आएगा। तो इनर प्रोडक्ट भी डिनोट डिस्टेंस ही करेगा, लेकिन द डिफरेंस इज कि जब हमें डॉट प्रोडक्ट को हर एक स्पेस के ऊपर एक्सटेंड करना है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, हमने उसको डॉट प्रोडक्ट रहने दिया ओवर द फील्ड, अगर हम आर या सी के ऊपर देख रहे हैं। जैसे ही हमने उस डॉट प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर दिया, हमने उसको नाम दिया इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर केस आ गया इनर प्रोडक्ट का। इज इट क्लियर? गॉट इट मैम, गॉट इट। एनी अदर डाउट? मैम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक स्पेस और जो नॉर्म्ड स्पेस हम पढ़ के आ रहे हैं वो भी इसी का मतलब जस्ट लाइक सब केस हो गए, पर्टिकुलर केस होंगे, या फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो वे नहीं रहेगा? देखो, मैट्रिक स्पेस में हम जब डिस्टेंस निकालते थे एक्स एंड वाई का, वो भी किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर निकाल रहे थे। नॉर्म स्पेस में जब निकाल रहे थे तो भी किसी के ऊपर निकाल रहे थे। डिफरेंस क्या आ रहा था? सिर्फ उसमें हमने मैट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था, नॉर्म स्पेसेस में हमने नॉर्म डिफाइन किया था, एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, राइट। अब हम उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होगा या नहीं, वो मैट्रिक स्पेस होगा या नहीं, हर एक मैट्रिक्स स्पेस को क्या हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल सकते हैं या नहीं। तो ये तीन अलग अलग स्पेसेस हैं जिनके हम इंटरकनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। ओके मैम, नाउ